Good morning, students. Now we have already discussed parallax method for measurement of large distance, and during that we also have discussed what is parallax. So let's just revise that topic once again. What is parallax? Suppose that there are 2 points A and B from which you are making observations. So these are the 2 points A and B from which you are making observation of distant object, say O. Then what happens? In the background, what you will observe, that position of O will get shifted. Position of O with respect to background will get shifted. Now why does this get shifted? It is because there is angle between, we can say, two line of sight. This line is known as line of sight. So there is a certain angle between two line of sight, and this shifting of position is known as parallax. So parallax method is very helpful method in order to measure the larger distance. अब ये पैरेलैक्स मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ distant object. In parallax method, we'll discuss how to find out distance of distant object. Suppose that we are here on the earth and we need to find out distance of this distant object, which is S. So how can we use parallax method? क्या करना होगा इसके लिए? हमें पहले तो हमें क्या करना होगा, अर्थ के जो दो काफी डिस्टेंट पॉइंट है एक दूसरे से, we'll have to select 2 points on earth which are at some distance from each other. Now to get better result, those 2 points must be as far as possible. So we have considered these two diametrically opposite points of earth. So these two diametrically opposite point on earth makes basis B. We make observation of source S from 2 points A and B. So A2S is one observation line, B2S is another observation line, and what we find that the angle between these two observation line or line of sight is equal to, say, theta. See once again, step by step what we have done. We needed to find out distance of this distant object S from earth. And for that, what we have done, we need to find out this distance. This distance, say it is equal to D. We need to find out this distance D. For that, what we will do, we will consider 2 points which are separated by some distance on earth. In order to get better result, what we have done, these 2 points that we have selected, they are diametrically opposite point. These two diametrically opposite point makes basis B. Now from these 2 points we have made observation of this distant object S. An angle between these two observation line, angle between these two line of sight is coming out to be theta, which is also measurable. Using this angle and using this basis, we can easily find out this distance D. See how we can find out this distance D. So over here we have one formula, that theta, that is in radian,
हमने प्लेन एंगल की डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पे हमने क्या देखा था, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इन रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन दिस रेडियस। सो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी यहाँ पे, इट इज स्मॉल b अपॉन दिस डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू कैपिटल D। Basis is known to us, it is nothing else but diameter of earth. Theta is measurable, so from here value of distance D comes out to be b by theta. So this is very simple method by which you can measure distance of distant object. In order to find out distance of distant object, we have used this method which is known as parallax method. और पैरेलैक्स मेथड से हमने क्या किया है, हमने अर्थ के ऊपर दो डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज को यूज किया है। दोस टू ऑब्जर्वेटरी मस्ट बी एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और वो लार्ज डिस्टेंस के लिए हमने क्या कंसीडर किया, दैट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एज मच लार्ज एज पॉसिबल। और अर्थ पे अगर आपको दो लार्ज डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, कौन से दो पॉइंट सिलेक्ट करोगे, यू विल सिलेक्ट टू पॉइंट्स विच आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। From these two diametrically opposite point we have made a observation of point S। तो हमें दो लाइन ऑफ साइट मिलती है, A2S एंड B2S। अब जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो एंगल की वैल्यू जो है वो है थीटा। और इससे अब हम ये डिस्टेंस D कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो वी हैव दिस फॉर्मूला दैट एंगल थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा विल बी इक्वल टू दिस बेसिस b अपॉन d। सो व्हाट विल बी कैपिटल D, कैपिटल D विल बी इक्वल टू b बाय थीटा, वेयर b इज बेसिस एंड थीटा इज नथिंग एल्स बट व्हाट, थीटा इज एंगल। सो दिस इज अ मेथड बाय विच यू कैन मेजर डिस्टेंस ऑफ लार्ज objects or distance of distant object from earth। See now we have already discussed how to find distance of distant object। अब जो next step है हमारा वो है how to find size of object। हम जो हमसे काफ़ी दूर प्लैनेट या स्टार है या गैलेक्सीज है उनकी साइज़ कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है टू फाइंड साइज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हाउ टू फाइंड आउट साइज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब ये कहीं दूर मान लो कि एक स्टार या प्लैनेट है और हमें इस प्लैनेट की साइज ढूंढनी है, मतलब टेक्निकली ये प्लैनेट का हमें डायमीटर ढूंढना है। हम कैसे डायमीटर ढूंढ सकते हैं, उसके लिए हम अर्थ के कोई एक पॉइंट ए से व्हाट विल डू, विल सिलेक्ट एनी वन ऑब्जर्वेटरी ऑफ अर्थ। नाउ दैट we already know what distance between earth and that distant object, ये कोई planet है या कोई star है, उसके और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें ऑलरेडी पता है। ये डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, वी ऑलरेडी हैव दिस डिस्टेंस, वी हैव कैलकुलेटेड दिस डिस्टेंस यूजिंग द अर्लियर मेथड एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट द साइज ऑफ दिस प्लैनेट। तो हमें कैसे ये साइज मिलेगा, ये प्लैनेट का या ये स्टार का, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अर्थ के ही एक पॉइंट से जो है इस प्लैनेट के या स्टार के दो एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जर्वेशन लेंगे। व्हाट विल डू, वी विल फोकस आवर टेलीस्कोप ऑन वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द प्लैनेट एंड देन विल रोटेट आवर टेलीस्कोप and then again will focus on other extreme end of the planet, and angle between these two extreme ends will be equal to what, angle between these two extreme ends will be equal to alpha, that we can easily calculate।
how much is the arm of telescope rotated. Using that you can easily find out this angle alpha. Now size of planet, let us say it is given by small d, which is diameter of planet. Again, by using concept of plane angle, one can say that alpha in radian, it is equal to length of r. So in this case it will be equal to d divided by capital D. So from here small d will be equal to what? It will be equal to alpha d. So this is very simple formula for us. Small d it is equal to alpha into d. यहाँ पे अल्फा क्या है आपके लिए? यहाँ पे अल्फा जो है आपके लिए वो है इस प्लैनेट का एंगुलर साइज. अल्फा को हम क्या कहेंगे? अल्फा को हम कह सकते हैं एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट. डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट फ्रॉम अर्थ. और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है हमारे लिए डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. सारे समझ में? अल्फा इज नथिंग एल्स बट एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट. कैपिटल डी क्या है हमारे लिए? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ. और स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ प्लैनेट. तो डायमीटर डी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. डायमीटर डी के लिए क्या होगी वैल्यू? अल्फा, दैट इज एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ. अब हमें पास दोनों मेथड है. टू फाइंड आउट द लार्ज डिस्टेंस वी हैव बोथ द मेथड्स. टू फाइंड आउट द लार्ज डिस्टेंस एंड ऑल्सो द साइज ऑफ प्लैनेट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. We can actually, using this parallax method, find both the things. We can actually find out what is the distance of that particular object from earth, and we can also calculate, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है काफ़ी दूर है हमसे, उसकी साइज क्या है. मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट सेम. दोनों में हमने जो है पैरेलैक्स मेथड और प्लेन एंगल का कंसेप्ट ही यूज़ किया हुआ है. नाउ मूविंग ऑन, ये तो बात हो गई हमारी लार्ज डिस्टेंसेस की. बट एज यू ऑल नो, along with the large distance we also need to find out what? The smaller distance. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब वो है हाउ टू फाइंड आउट द स्मॉल डिस्टेंस, हाउ टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. स्मॉल ऑब्जेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की. हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है उनकी रेंज काफ़ी कम है. फॉर एग्जाम्पल बात करें हम साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसे बहुत सारे बुकों में साइज ऑफ प्रोटॉन भी कहा गया है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन भी कहा गया है. उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर. और अगर मैं बात करूं साइज ऑफ एटम की, तो उसकी साइज की रेंज भी जो है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर. द साइज ऑफ एटम इज हैविंग रेंज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, whereas size of nucleus is of 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15 meter. Generally, we see everyday object around us using our eyes, and visible light helps us to find out or view those objects. Now, when you are talking about visible light, this visible light is very small part of our entire electromagnetic spectrum. विजिबल लाइट जो है हमें पता है कि वो 7 कंपोनेंट कलर से बनी हुई है. विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और ये जो वायलेट कलर की हम बात करें, उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम. रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 8000 एंगस्ट्रॉम. ये बात कर रहे हैं हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की. ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ वेवलेंथ की.
वेवलेंथ क्या होती है उसके बाद मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल आपने 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये जो वेवलेंथ है इस लाइट की, उसकी रेंज क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो देयरफॉर वन कैन से दैट वेवलेंथ रेंज और रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट अगर यहाँ से देखें तो 4000 इंटू 10⁻⁻10, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब समझ सकते हो ये रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। यू आर गेटिंग दिस नाउ। ये वेवलेंथ रेंज है, उसका मतलब क्या होता है कि आप विजिबल लाइट की हेल्प से जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो या कर सकते हो, यूजिंग दिस विजिबल लाइट द ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन ऑब्जर्व should also be greater than or equal to its wavelength। आ रहा है समझ में? अगर आप विजिबल लाइट से कोई चीज ऑब्जर्व करना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होने चाहिए। ये कंपलसरी है हमारे लिए। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से जो है उसके डायमेंशन ज्यादा होने चाहिए। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ आर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो बायोलॉजी लैब में या और कई जगह पे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज हम करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसमें हम क्या यूज करते हैं, विजिबल लाइट, उससे आप छोटे से छोटा कितना ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि विजिबल लाइट से चीज ऑब्जर्व करने के लिए उसकी साइज उसके वेवलेंथ से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि उसका रिजोल्यूशन पावर भी जो है या रिजोल्विंग पावर जो है उसका ऑर्डर 10⁻⁻7 मीटर होगा। आ रहे समझ में? बिकॉज विजिबल लाइट इज हैविंग वेवलेंथ रेंज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू व्हाट 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। व्हाट वी मीन बाय दिस, वी मीन दैट resolution of optical microscope is of the order of 10⁻⁻7 मीटर। मतलब 10⁻⁻7 मीटर से भी कम डायमेंशन जिन ऑब्जेक्ट्स के होंगे, ऑब्जेक्ट्स हैविंग डायमेंशन लेस देन 10⁻⁻7 मीटर कैन नॉट बी व्यूड यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कैन नॉट बी व्यूड यूजिंग विजिबल लाइट। यू आर गेटिंग दिस? आ रहा है समझ में? क्या बताया हमने यहाँ पे फिर से एक बार, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें हम क्या यूज करते हैं, विजिबल लाइट यूज करते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या है हमारी, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जरूरी चीज क्या है कि जिस लाइट से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट की साइज उस लाइट की वेवलेंथ से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ का अगर ऑर्डर 10⁻⁻7 मीटर है तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख पाओगे जिनकी साइज 10⁻⁻7 से बड़ी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस मुताबिक हम विजिबल लाइट से जो छोटे में छोटी चीज़ देखेंगे उसकी जो डायमेंशन होगी वो 10⁻⁻7 मीटर होगी, उसकी जो साइज होगी वो 10⁻⁻7 मीटर होगी। सो व्हाट डज इट इंडिकेट, रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज 10⁻⁻7 मीटर। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारी एप्लीकेशन में तो हमें साइज ऑफ एटम भी मेजर करना है। साइज ऑफ एटम क्या है हमारा, 10⁻⁻10 मीटर, या तो फिर हमें न्यूक्लियस भी ऑब्जर्व करना है जिसकी साइज क्या है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये जो छोटे डिस्टेंस है, साइज ऑफ एटम हो गया या साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए जो माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आ रहा है समझ में?
व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम 10⁻⁷ मीटर से भी कम डायमेंशन यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन वेव को यूज करते हैं। रादर देन यूजिंग अ विजिबल लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव इज अ मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन वेव का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन को आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे एट वेरी हाई स्पीड ट्रैवल कराते हो, उसका बिहेवियर जो है, उसका नेचर जो वेव के जैसे हो जाता है, और उसी वेव को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव या इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव जो है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर का है। रेंज और वेवलेंथ रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 10⁻⁻10 मीटर। यू आर गेटिंग दिस? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ वेवलेंथ रेंज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर. So that's why one can say that resolving power of electron microscope is of the order of 0.6 एंगस्ट्रॉम. 0.6 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मैंने पहले ही समझा दिया है, वो क्या होगा? 0.6 × 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कि 6 × 10⁻⁻11 मीटर. सारी बात आपको समझ में? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर वो विजिबल लाइट से यूज होने वाले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी काफ़ी कम है. कम रिजोल्यूशन पावर, उसका मतलब है कि ये जो माइक्रोस्कोप है वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा पावरफुल है. आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कब होगा? कि जब आपको बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, जिनकी साइज का रेंज क्या है? 10⁻⁻10 मीटर. तब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. जनरली सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल डिफेक्ट स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करते हैं. तो ये बात हो गई हमारी स्मॉलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हम दो माइक्रोस्कोप जनरली यूज़ करते हैं. एक है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. उसके वेवलेंथ की बात. चलो नेक्स्ट, अब एक और मेथड है हमारे पास टू मेजर स्मॉलर डिस्टेंस. छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, और वो मेथड को हम कहते हैं टू फाइंड साइज ऑफ एटम. हम क्या करते हैं? एक उसकी मोनो एटॉमिक लेयर मेथड से उसकी साइज एस्टिमेट कर सकते हैं. अब ये क्या है मोनो एटॉमिक लेयर मेथड? अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, मान लो ये आपके पास एक क्रिस्टल है. इस क्रिस्टल के अंदर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे एटम्स हैं, और ये सारे जो एटम्स हैं, मान लो इनको हमने ऐसे लाइंड अप किया हुआ है. दीज आर ऑल एटम्स विच आर लाइंड अप लाइक दिस वे. दीज आर ऑल एटम्स विच आर लाइंड अप लाइक दिस वे. ओके, these are all atoms which are arranged in this manner. So what you see that there are many layer of atom one above the other. This is called multi-atomic layers. कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट्स देखें, ये चौक देखें या कोई भी एक स्टील का टुकड़ा ले या कुछ भी चीज़ ले, हमें ऐसे दिखेगा कि बहुत सारे एटम्स उसके ऐसे लाइंड अप होंगे, और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर एटम की होगी. वैसे लेयर्स ऑफ एटम होंगे. अगर आप क्या करते हो कि इस ऑब्जेक्ट से थिन शीट बताते हो, व्हाट यू मीन, व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, यू आर मेकिंग अ थिन शीट आउट ऑफ दिस ब्लॉक. व्हाट यू विल गेट, दिस लेयर्स विल स्लाइड ओवर वन अनदर, and finally you are having this sheet, and these sheets are having, we can say, atomic layers only, but
as you can see the number of layers now of atom have reduced. आप देख सकते हो उसमें से जो मैंने शीट बनाई है तो उससे क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ लेयर्स है एटम की वो रिड्यूस हुई। ऐसे शीट की थिकनेस हम और कम करते करते जाएंगे, अल्टीमेटली हम ऐसे स्टेज पे आएंगे wherein we will have a sheet which is having a single layer of atom. हम अगर इसकी थिकनेस रिड्यूस करते जाएंगे, नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, अल्टीमेटली हम ऐसे स्टेज पे आएंगे कि जहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ एटम। ये जो लेयर हमने बनाई उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक लेयर। ये जो लेयर हमने बनाई उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक लेयर। अब ये मोनो एटॉमिक लेयर जो है उसकी जो थिकनेस होगी T, आप देख सकते हो। आप कोई भी मेथड से, आगे मेथड की भी एक एग्जांपल की चर्चा करेंगे, हम कोई भी मेथड से इफ़ वी मेजर द थिकनेस ऑफ दिस मोनो एटॉमिक लेयर देन वन कैन से दैट थिकनेस ऑफ दिस मोनो एटॉमिक लेयर ओके इज इक्वल टू व्हाट, size of atom। आ रहा समझ में? There is one more method that we have discussed in order to estimate the size of method. In order to estimate the size of method, you have to roll down that steel or whatever the object is given to you as thin as possible. Eventually, you reach this stage wherein you are having thin or we can say sheet so thin so that there is only a single layer of atom over it. Now thickness of that particular sheet will be equal to what? Will be equal to size of atom. One such thing we are going to discuss now. एक ऐसी चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी वो है to estimate size of molecule of ओलिक एसिड। आ रहा समझ में? हम जिस एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात करने वाले हैं वो क्या है, टू एस्टिमेट साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। हमें पता है कि साइज ऑफ molecule of oleic acid is a fatty acid which is found in natural sources. Size of molecule of oleic acid is of the order of 10 power minus 9 मीटर। ठीक है, ये ओलिक एसिड की साइज काफ़ी कम है जिसकी साइज क्या है 10 पावर माइनस 9 मीटर। और उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे एस्टिमेट करेंगे, वी विल use monomolecular layer method to estimate the size। जो मेथड हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं वो है हमारी मोनोमोलिक्यूलर लेयर मेथड टू एस्टिमेट साइज ऑफ ओलिक एसिड। आ रहा है समझ में? क्या करना है हमें यहाँ पे फाइंड करनी है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड जो काफ़ी कम है, दैट इज अराउंड 10 पावर माइनस 9 मीटर। और उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मोनोमोलिक्यूलर लेयर मेथड टू एस्टिमेट दैट पर्टिकुलर साइज। यहाँ पे जो है हम 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल जो है हमारे पास, ये एक बीकर है जिसमें हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल रखा हुआ है और उसमें जो है हम क्या ऐड करने वाले हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड। समझ में? विल मेक
20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड विद अल्कोहल, मतलब टोटल ओलिक एसिड और अल्कोहल मिलके 20 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। मतलब अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो 19 सेंटीमीटर क्यूब आपने अल्कोहल लिया है, उस 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में आपने क्या रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड रखा हुआ है। तो क्या होगा, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल प्लस ओलिक एसिड सोल्यूशन, ये हमारे पास है यहाँ पे, जिसमें हमने कितना रखा हुआ ओलिक एसिड, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उससे ये पता चल जाता है हमें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन इज व्हाट, 1/20। आ रहा समझ में? हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सोल्यूशन बनाया है अल्कोहल और ओलिक एसिड का, और उस सोल्यूशन में ओलिक एसिड जो है वो सिर्फ कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 1/20। अब आप क्या कर रहे हो, और 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल ले रहे हो। आ रहा समझ में? हमने क्या किया, और 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल लिया है, और इसमें हमने क्या रखा, अब इसमें हमने रखा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस प्रीवियस सोल्यूशन। आ रहा समझ में? First what we have done, we have made 20 centimeter cube of oleic acid and alcohol solution in which we had 1 centimeter cube of oleic acid. It indicates that concentration of oleic acid in this particular solution was 1/20। उसे और डाइल्यूट कर रहे हैं हम, उसे और डाइल्यूट करने के लिए हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में ये वाले सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्स किया हुआ है। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, 1/20 इंटू 20। यू आर गेटिंग दिस, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इज इनिशियली डिजॉल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, so that concentration of oleic acid in this particular solution will be 1/20। now we are taking out 1 centimeter cube of this solution, इसमें से ही हमने जो है ये 1 centimeter cube of previous solution किस में डाला हुआ है, और 20 centimeter cube of alcohol में। so the final concentration of oleic acid is 1/20 into 20, that is 1/400 you can also say। तो ये हमारा इनिशियल स्टेप हुआ टू मेक अ सोल्यूशन। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है अब यहाँ पे, उसमें ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसमें ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 1/20 इंटू 20। ओके, गेटिंग दिस? नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास जो ओलिक एसिड का सोल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन सोल्यूशन क्या है बताइए, 1/20 इंटू 20। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट का? नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट का काफ़ी सिंपल है, हमें फिर से एक वेसल लेना है, और ये वेसल के अंदर हम क्या करेंगे, ये वेसल के अंदर हमने वाटर रखा हुआ है। ये वेसल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमें पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेसल, लेट अस से इट इज इक्वल टू ए, हमें पता है। अब जो हमने ये सोल्यूशन बनाया हुआ है, द सोल्यूशन दैट वी हैव मेड इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/20 इंटू 20, इट इज सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड विद अल्कोहल। उसे हम एक ड्रॉपर में लेते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में? उसे हम एक ड्रॉपर में लेते हैं, और ड्रॉप जो है वो हम इस वाटर के ऊपर पोर करेंगे। एक एक ड्रॉप करके हम क्या करेंगे,
इस वाटर के ऊपर हम जो है ये ओलिक एसिड वाले सोल्यूशन को डालेंगे। ये जो है वो क्या है, ड्रॉप ऑफ दिस ओलिक एसिड सॉल्यूशन मेड विथ अल्कोहल। तो जनरली क्या होगा कि जब आप इस ओलिक एसिड के सॉल्यूशन को, व्हाट विल हैपन इफ यू पोर ओलिक एसिड सॉल्यूशन ओके विद अल्कोहल लाइक दिस वे, व्हाट विल हैपन, जैसे आप ओलिक एसिड के सॉल्यूशन को वाटर में डालते हो आपको क्या दिखाई देता है, व्हाट यू ऑब्जर्व, द ओलिक एसिड as I am showing you over here, the oleic acid will float on surface and the alcohol will get dissolved in water। आ रहा है समझ में? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही इस ओलिक एसिड और अल्कोहल के सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को वाटर के सरफेस पे रखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर का जो अल्कोहल होगा वो तो वाटर के साथ जाके डिसॉल्व हो जाएगा और जो ओलिक एसिड है वो स्प्रेड होगा ओवर द वाटर सरफेस लाइक दिस वे, एंड दिस लेयर ऑफ ओलिक एसिड इज ऑलमोस्ट व्हाट, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट मोनोमोलिक्यूलर लेयर। आ रहा है अभी आपको समझ में? जैसे ही ओलिक एसिड को हमने इस वाटर में डाला है, ओलिक एसिड और अल्कोहल के सॉल्यूशन को, अल्कोहल जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और उसके सरफेस पे हमें थिन फिल्म मिलेगी ऑफ ओलिक एसिड, और वो जो थिन फिल्म होगी वो ऑलमोस्ट मोनोमोलिक्यूलर लेयर है। आप क्या चाहते हो कि ये पूरा एरिया जो है वाटर सरफेस का, ये पूरा एरिया पे ओलिक एसिड आ जाए। What you want, that entire surface of water should get covered with this film of oleic acid। In order to do that, आपने एक ड्रॉप डाला है तो छोटा एरिया लिया है उसने, और एक दूसरा ड्रॉप डालोगे तो ये एरिया इंक्रीज होगा। So similarly you go on pouring on drops and ultimately a stage will come when entire surface of water will get covered with oleic acid like this way। So for that you are using n drops and each of volume से V। हमने टोटल ड्रॉप्स जो यहाँ पे डाले हैं इसके सरफेस पे वो n ड्रॉप्स है, और हर ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो कितना है यहाँ पे V। तो हम ये बोल सकते हैं कि what is the volume of solution that you have put on the water, n drops each having volume V। so volume of solution जो है वो क्या होगा NV, और volume of solution अगर NV है तो what will be volume of ओलिक एसिड। हमें पता है कि जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन डालेंगे उसमें ओलिक एसिड कितना होगा, 1/20 × 20 होगा पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। concentration of oleic acid is 1/20 × 20। so if you are putting total n into V volume of solution, volume of oleic acid will be NV/20 × 20। you are getting this? This is the volume of oleic acid that is right now floating on the surface of water। now since you are having the volume of oleic acid, we have very important formula of volume। volume can be written as area of cross section multiplied by thickness T। ये हमें पता है। अगर आप सिलेंडर लेते हो, ये सिलेंडर है चलो हमारे पास, जिसकी हाइट L है और जिसका ये एरिया क्या है πr², तो हम वॉल्यूम क्या लेते हैं, इट इज πr² × L। वी कैन राइट डाउन वॉल्यूम लाइक दिस वे। सो सिमिलरली वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू थिकनेस। आ रहा है समझ में? क्लियर है कि हम यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो ये जो ओलिक एसिड है उसकी थिकनेस मेजर अगर हमें करनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि थिकनेस ऑफ
this oleic acid is equal to this volume, that is NV by 20 into 20 into area A. You are getting this? कोई डाउट है यहाँ पे? What is the thickness of oleic acid that you are having? NV divided by 20 into 20 into A. ओके, अगर ये थिकनेस हमें मिल गई है, n ड्रॉप्स आप काउंट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप हमें पता है ड्रॉपर में, तो यू आर नोइंग n, यू आर नोइंग v, एंड एरिया ऑल्सो वी आर ऑलरेडी हैविंग. सो यूजिंग ऑल दैट वी कैन एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड लेयर. ठीक है, थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड लेयर, एंड सिंस दैट लेयर इज मोनोमोलिकुलर लेयर, देयरफॉर वी कैन से दैट size of molecule of oleic acid is nothing else but it is equal to thickness of oleic acid layer. आ रहा है समझ में? Size of molecule of oleic acid is equal to thickness of oleic acid layer. So these were the method to find out the size of molecule of oleic acid. सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल लिया, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड का सोल्यूशन डाला है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड क्या होगा? 1/20. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसके अंदर उसे हम जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालते हैं, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड सोल्यूशन जो हमारे पास है वो 1/20 into 20. What you are doing after that? You are having a beaker which is filled with water. Area of cross section of this particular vessel or beaker that you are knowing is equal to A. You are dropping this solution on the surface of water very slowly, so that what comes? Oleic acid will get spreaded on the surface of water, whereas the alcohol will get dissolved in water. So finally you are having some area on surface of water which is covered with oleic acid. अब हम क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके बढ़ाते जाएंगे ड्रॉप. ये ड्रॉप बढ़ाते बढ़ाते हम इतने ड्रॉप्स रखेंगे जिससे कि पूरा सरफेस जो है वो ओलिक एसिड की लेयर से कवर हो जाए. मान लो कि हमने टोटल n ड्रॉप्स डाले, सबका वॉल्यूम v है, तो टोटल हाउ मच सोल्यूशन ऑफ वाटर दैट यू हैव poured into that water vessel, it is equal to nv. nv is the volume of solution, but that solution contains oleic acid as well as alcohol. So amount of oleic acid that is poured is nv by 20 into 20, since concentration is 1/20 into 20, तो ये volume of oleic acid हुआ. Then simply volume is area into thickness. Knowing this volume, knowing this area, you can calculate the thickness as volume divided by area, and the thickness of that monomolecular oleic acid layer is nothing else but what? Size of molecule of oleic acid. Now we'll discuss some large unit of distance. हम सबको पता है कि हम जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस जो है हमारे स्केल पे हम सेंटीमीटर से यूज़ करेंगे. अगर साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ रूम चाहिए तो मीटर से यूज़ करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ के लिए हम जनरली किलोमीटर यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, गैलेक्सीज की बात करते हैं, ओवर दैट दिस डिस्टेंस और दिस यूनिट इज़ सो स्मॉल, सो वी नीड टू हैव सम लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस एज वेल. तो ऐसे ही लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करेंगे. सबसे पहला जो लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस की मैं बात करूंगा वो है लाइट ईयर. द फर्स्ट लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? इज लाइट ईयर. लाइट ईयर को हम क्या कहेंगे? वी कैन कॉल इट एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट in 1 year is known as
व्हाट, लाइट ईयर। लाइट ईयर है वो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस होगा वो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन अ 1 ईयर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर 1 LY। डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं अब, डिस्टेंस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो एक ईयर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है हमें पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम भी हमें सेकेंड में लिखना होगा। हमें कितना टाइम दिया हुआ है, 1 ईयर का टाइम, 1 ईयर का टाइम, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 365.25 डेज। हर दिन में कितने आवर्स, 24 आवर्स, और इन ईच आवर यू हैव 3600 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द टोटल टाइम इन सेकेंड, 365.25 days. In each day you are having 24 hours. In each hour you are having 3600 seconds. So the time multiplied by this velocity 3 × 10⁸. So this comes out to be 9.46 × 10⁻15 meter. So 1 light year is a distance equals to 9.46 × 10⁻15 meter. आ रहा समझ में 1 लाइट ईयर, क्लियर है। इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन अ 1 ईयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट वी ऑल नो इज 3 × 10⁸ meter per second, and time that you are taking for that is 365.25 days. In each day you are having 24 hours, and for each hour we are having 3600 seconds. So 1 light year is 9.46 × 10⁻15 meter. Now this is the फर्स्ट डिस्टेंस लाइट ईयर, पहले यूनिट की हमने बात की। जो दूसरा यूनिट है वो है हमारा AU। AU को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है, ये होता है एवरेज डिस्टेंस between sun and earth is known as astronomical unit। आ रहा है समझ में, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे एवरेज इसलिए हमने लिखा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कीप्स ऑन चेंजिंग। वी नो दैट ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर ऑर्बिट और रादर इट इज elliptical orbit, so distance is never the same, it increases then again decreases, becomes minimum and it becomes maximum. So average distance जो होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए वो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। सो दिस इज अनदर लार्जर यूनिट। हमने 2 लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात की है। लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज लाइट ईयर, and second astronomical unit is average distance between sun and earth is known as astronomical unit. अब जो हम तीसरे यूनिट की बात करने जा रहे हैं वो है पार्सेक। ये तीनों जो बड़े यूनिट है हमारे, लाइट ईयर, astronomical unit, and the third unit that we are talking about is parsec. 1 parsec is how much distance? Distance at which 1 astronomical unit makes angle of 1 second is called parsec। आ रहा समझ में, distance at which 1 astronomical unit makes angle of 1 second is called parsec। मान लो ये आपके पास डिस्टेंस है जो कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसके दोनों पॉइंट से आप 2 रेस या 2 लाइंस खींच रहे हो, वो बहुत आगे जाके मिल रही है। गेटिंग दिस?
they meet at some point O such that this angle is very small, 1 second, then this distance D is known as what? 1 parsec. 1 parsec is a distance at which one astronomical unit makes an angle of 1 second. अब यहाँ पे भी हमें पता है कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं ये डिस्टेंस D. ये मान लो कि थीटा है, ये B है, तो बस फॉर्मूला था D का, इट इज B बाय थीटा. B है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या हुआ ये? 9.46 इंटू 10 पावर 15 डिवाइड बाय 1 सेकेंड. 1 सेकेंड इज हाउ मच? 1 डिवाइड बाय 3600. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक. इट इज 1.496 इंटू 10 पावर 11. 1 डिवाइड बाय 3600. ये सेकेंड्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में. उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना होगा, तो 3.14 बाय 180, 1.496 इंटू 3600 इंटू 180 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10 पावर 11. तो ये डिस्टेंस जो है हमारा 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर हमें मिलेगा. आ रहा है समझ में? तीनों बड़े यूनिट्स की बात की हमने यहाँ पे. 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज व्हाट? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड 1 parsec is distance at which 1 astronomical unit makes angle of 1 second is known as 1 parsec.